Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So today's video is going to be a very important video because I'm going to be explaining you the entire syllabus of the JEE Arc examination. So if you have started with your preparation or if you are in midway, you need to watch this video guys. The reason being कि suppose आप board exam की preparation कर रहे हो, so you don't watch any video for the syllabus explanation of the board's exams, right? But for the JEE Arc exam, the syllabus explanation video is the most important video you should watch before you start with your preparation, okay? Or even if you have started with your preparation, you need to watch this video. The reason being that the official syllabus which is released by the JEE people, if you will check out the official syllabus PDF, it is not very clear. You will not understand that what exactly are the topics and what exactly are the things that you need to study for the examination. That is why this video is going to be very important. Now I must tell you that whatever I am going to be showing you in this video, it has been custom made by SSAC guys. तो ये जो पूरा syllabus है ये JEE का ऑफिशियल सिलेबस नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, बट हमारा अपना जो कस्टम सिलेबस है, करिकुलम है, दैट आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू. We have been following this curriculum for over 5 years now, and if you already don't know, SSAC has a success rate of 1/3. This means that 1 out of every 3 students who join in SSAC end up becoming a topper, and they are also following the same curriculum for over 5 years now. So that is why this is the tried and tested syllabus for the JEE Arc, which will make you the topper, the next topper, if you follow this properly. तो जितने भी क्वेश्चंस JEE Arc एग्जामिनेशन में आते हैं, ईदर इट इज फ्रॉम आवर बुक्स, ओके, और जो मैं अभी आपको आज जो भी सिलेबस दिखाऊंगी वो हमारे बुक्स में से ही दिखाऊंगी. जो हमारे बुक्स में टॉपिक है, कंटेंट है, उसमें से ही मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. कोई भी पार्ट स्किप मत करना. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक नोट्स ऑल्सो. सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. Okay guys, so first let's understand that what are the subjects in the examination that you need to study. So there are 3 parts for the JEE Arc examination. The first is aptitude, the second is mathematics, and the third is the drawing part. Now for the aptitude part, this part is the most important because इसका जो weightage है वो सबसे ज़्यादा है इनकम. Like obviously maths 100 marks का आता है, drawing भी 100 marks का आता है, but aptitude is of 200 marks. Okay, so JEE Arc is obviously a 400 marks paper, जिसमें से 200 marks तो सिर्फ aptitude part के लिए ही होता है. Now one thing that I will share with you guys over here is that मैंने जो नोटिस किया है over the past few years, जितने भी मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, जिन भी बच्चों की अंडर 500 रैंक होती है, so obviously I have seen a lot of results and there is one thing which is common in most of the results whose ranks are under 500. वो चीज़ ये है कि जिन भी बच्चों की अच्छी रैंक है उन सबका एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा परसेंटाइल होता है. सो अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर 50 क्वेश्चंस का पेपर है तो हमेशा वो लोग बोलते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट 42 to 45 क्वेश्चंस करेक्ट रहे होंगे हमारे ये परसेंटाइल आने के लिए. दैट मीन्स दैट फॉर द एप्टीट्यूड पार्ट यू रियली नीड टू गिव योर 100%. आपको प्रिपरेशन एप्टीट्यूड की 100% रखनी ही पड़ेगी. दिस इट्स नॉट एन ऑप्शन. देखो ड्राइंग और मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, समटाइम्स इट इज़ अ लिटिल बिट टैलेंट बेस्ड, लिटिल बिट some people have a knack towards good drawing, some people have a knack towards mathematics. तो वो थोड़ा होता है कि ठीक है, कोई बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कोई बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, ठीक है, बट एप्टीट्यूड में हर कोई अच्छा हो सकता है. इसमें से कुछ है ही नहीं कि आप इसमें अच्छे नहीं हो सकते. आपको बस समझना है, सारी क्लासेस अटेंड करनी है, बुक्स में सब कुछ पढ़ना है ठीक से, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एप्टीट्यूड पार्ट. इट इज़ फॉर एवरीबडी. इसमें से कुछ है ही नहीं कि आप एप्टीट्यूड में अच्छे हो गए या अच्छे नहीं हो गए. आपको इसमें अच्छा होना ही पड़ेगा. इस पार्ट को आपको 100% कवर करना ही पड़ता है गाइज. एंड इफ यू टॉक अबाउट द मैथ्स पार्ट एंड द ड्राइंग पार्ट, तो यहाँ पे ईदर यू कैन गिव योर 100% इन द मैथ्स पार्ट कि चलो आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, आपके बहुत अच्छी परसेंटाइल आई है, या फिर आपको ड्राइंग में अपना 100% देना पड़ेगा कि यार आपकी ड्राइंग में बहुत अच्छी परसेंटाइल है.
तब आपकी अंडर 500 रैंक फिक्स हो जाती है कि ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रैंक इन द जेईई बीएक एग्जामिनेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से शुरू करते हैं, एप्टीट्यूड पार्ट से शुरू करते हैं कि क्या सिलेबस इसका होता है एंड डिटेल में समझते हैं। ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, तो प्लीज़ आराम से कहीं बैठ जाओ। इफ़ यू वांट यू कैन ग्रैब सम स्नैक्स और समथिंग लाइक दैट, कीप टेकिंग नोट्स एज वेल, बिकॉज ये वीडियो आपको और कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलने वाली है और देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको टॉपर बनना है तो। लेट्स स्टार्ट विद द एप्टीट्यूड पार्ट गाइज। इन द एप्टीट्यूड पार्ट आई हैव डिवाइडेड दिस सेक्शन इनटू 6 डिफरेंट टॉपिक्स, ओके, एंड ये हमारी बुक्स का भी नाम है। ये सारी हमारी 6 डिफरेंट बुक्स हैं जिससे हम प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो ये 6 मेजर टॉपिक्स है। वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द टॉपिक्स विच वी गिव इन दिस बुक, एवरीथिंग दैट इज देयर इन दिस बुक। आई विल ऑल्सो शो यू द बुक एंड वहाँ से भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, सो डोंट वरी, ओके। तो देखो, ये जो 6 टॉपिक्स हैं डेफिनेटली ये ऑफिशियली नहीं दिया गया है बाय द जेईई पीपल, इट इज़ आवर करिकुलम एंड जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमेशा इन्हीं 6 बुक्स के अंदर से ही आते हैं इन द एप्टीट्यूड पार्ट। तो अराउंड 50 में से आप मान सकते हो 45 क्वेश्चंस, 45 और 46 क्वेश्चंस अराउंड हमारी बुक्स में से होते हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चंस येस कैन बी देयर विच इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो वो ठीक है। थोड़ा बहुत एंट्रेंस एग्जाम है ऑल इंडिया, तो थोड़ा बहुत 4-5 क्वेश्चंस बाहर से आता है, बट मोस्टली 45-46 क्वेश्चन हमारी सारी बुक से आता है, या फिर क्लासेस में जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसमें से ही शॉर्ट रहता है। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस पार्ट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर इन SSAC स्पेशली, एंड बच्चों के आ जाते हैं मार्क्स इसकी वजह से। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारी बुक्स को समझते हैं, टॉपिक्स देखते हैं, क्या क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी दिखाऊंगी और बुक्स भी दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक विच इज़ द जनरल एप्टीट्यूड बुक, ओके। सो इन द जनरल एप्टीट्यूड बुक, अच्छा, अब मैंने एनालिसिस किया है जो 2024 में पेपर आया है, दैट मीन्स इस साल का जो पेपर हुआ है जेईई बीआरक का, उसमें मैंने एक अटेम्प्ट, जैसे 2 अटेम्प्ट होते हैं, राइट, सो देयर विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द सेकेंड अटेम्प्ट फॉर 2024। तो मैंने एक अटेम्प्ट का पेपर लिया है और उसका एनालिसिस किया है, एंड ऑल द क्वेश्चंस, नॉट ऑल एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैं डाल भी नहीं पाई, तो एक स्लाइड पे मैं जितने भी क्वेश्चंस डाल पाई हूँ वो मैंने डाले हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो बुक से सेम सिमिलर आए हुए हैं, बट जितना मैं एक स्लाइड पे डाल पाई हूँ दैट मच आई विल शो यू इन टुडेज वीडियो, ओके। तो डेफिनेटली मैंने अलग अलग पेपर से क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ एक पेपर लिया है। ठीक है, एक पेपर, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, कि एक पेपर में हमारी बुक से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप समझो कि मैं अलग अलग साल के अलग अलग पेपर से कंपाइल करूं तो दैट डिफीट्स द पर्पस, राइट। तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे जो भी आपको मैं सिलेबस जो भी दिखा रही हूँ, इसमें से ही सारे क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आते हैं, कोई भी अटेम्प्ट हो, आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, आपको ये सब सारे क्वेश्चन उसके हमारे बुक्स में या हमारे जो भी मैं आपको आज बताऊंगी सिलेबस, इसमें से ही होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट इन द पेपर, तो हर पार्ट जो आपको मैंने 6 टॉपिक्स दिखाए हैं, राइट, 6 मेजर टॉपिक्स, तो हर टॉपिक से आप मान लो अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम, ओके। ऑलमोस्ट इफ आई से, थोड़े कम हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, हो सकता है कि 6 क्वेश्चन भी हो सकता है 9 क्वेश्चन हो, ठीक है, बट इतने क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। और येस, आप सोचोगे कि ओके, वी आर रीडिंग दिस होल book of general aptitude and we are only getting 8 questions or we are only getting 7 questions. Yes, you have to read the whole book for these 7 questions only. Even if 4 questions are coming, you have to read the whole book because ये ही तो 4-5 questions करके ही आपके मार्क्स बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपकी रैंक ऊपर जाएगी। तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कवर करने के लिए आपको पूरा बुक पढ़ना ही पड़ेगा गाइज। ठीक है, सो नाउ इन द जनरल एप्टीट्यूड पार्ट इफ यू सी, देयर आर 15 topics that I have given, okay. The first 4 topics if you see, this is for drawing theory, ये ड्राइंग थ्योरी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, कलर स्कीम्स, कलर साइकोलॉजी इन आर्किटेक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर डिजाइनिंग अ रेस्टोरेंट और समथिंग, मे बी इन द इंटीरियर्स यू वुड वांट टू यूज येलो, यू वुड वांट टू यूज ऑरेंज, यू वुड वांट टू यूज रेड। अगर आप KFC गए हो या आप मैकडी गए हो, आपने देखा होगा कि ये कलर्स इंटीरियर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं बिकॉज दीज आर हंगर स्टिम्युलेटिंग कलर। सो अगेन कलर स्कीम्स एंड टर्म्स के बारे में बात
बात हो रही है. इफ यू टॉक अबाउट एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, दीज आर रूल्स ऑफ डिजाइनिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारी बुक देखोगे तो यू नो देयर इज एन एस्थेटिक सेंस अटैच टू इट. तो ये कितना, जैसे अगर ये डिजाइन आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, फिर ऐसे है, तो इट्स काइंड ऑफ बैलेंस्ड, अ बैलेंस्ड डिजाइन यू कैन से. तो इसलिए काफी एस्थेटिक लग रहा है. तो हर चीज में, बुक डिजाइनिंग से लेके वेबसाइट डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, एनी काइंड ऑफ डिजाइन, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. फिर है आर्किटेक्चरल टर्म्स मैंने डाला है, और इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर इन आर्किटेक्चर मैंने डाला है. बिकॉज कि अगर आप एक किसी आर्किटेक्ट से बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आर्किटेक्ट्स को नॉर्मली पता होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉलम्स, बीम्स, लिंटेल, सिल, ऐसे बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं. तो ये मे बी एज अ स्कूल स्टूडेंट यू मस्ट नॉट नो, बट इन द एग्जाम इट माइट कम. तो आपको ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए जो एक आर्किटेक्ट को पता होते हैं. इंस्ट्रूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए. अगर आप ये बीच के 4 टॉपिक्स देखोगे, सो दीज आर प्योर जीके टॉपिक्स. ठीक है, इससे मैंने रिपीटेडली देखा है कि बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में. बेसिक इंडियन जीके के ऊपर आ जाता है, आर्ट मूवमेंट्स, इंडियन आर्टिस्ट, फॉरेन आर्टिस्ट, पेंटिंग्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, बोथ इन नाटा एंड JBR. तो इसीलिए ये जीके के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डाले हैं. और ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जैसे क्लाइमेटोलॉजी, अकूस्टिक्स, लाइटिंग, बिल्डिंग सर्विसेज, गोल्डन रेशियो पे बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि बाकी बुक्स में नहीं कवर हो पाए. तो ये मैंने यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड की बुक में डाल दिया है. तो बेसिकली दिस इंटायर बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल शो यू कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये बुक कैसी है वो भी आपको दिखाती हूँ. तो दीज आर द क्वेश्चंस विच केम इन 2024 इन आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट. मुझे याद नहीं कि मैंने कौन से अटेम्प्ट का लिया है, बट या तो ये फर्स्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन है. अब डेफिनेटली इससे ज्यादा भी क्वेश्चन थे, मैंने कुछ क्वेश्चन डिलीट भी करे क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक स्लाइड में मैं कवर कर दूं. इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें जगह भी नहीं है दिखाने की. बट सारे क्वेश्चन इन्हीं 6 बुक्स में से कहीं ना कहीं किसी बुक में आपको मिल जाएंगे. तो गाइज आप लोग स्क्रीन को पॉज करके सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गया है. तो यूजुअली आपको एज अ स्कूल स्टूडेंट नहीं पता होगा प्रोबेबली कि आर्किटेक्ट्स कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बट ये बहुत कॉमन एक चीज है जो आर्किटेक्ट्स को पता ही होता है, राइट. सो 3D मैक्स यूज करते हैं, स्केचअप यूज करते हैं, रेविट यूज करते हैं, स्टैट प्रो इज नॉट यूज बाय आर्किटेक्ट्स. तो ये भी मैंने बुक में डाला हुआ है. सॉफ्टवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो यूज बाय आर्किटेक्ट्स. जैसे आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं पैरेलल बार और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज करते हैं, वो भी आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए. उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आवर बुक और सारे क्वेश्चन है डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखो. ये भी क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट नहीं आते हैं. थोड़ा अगर आपने अच्छे से बुक पढ़ी है तभी आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड की बुक दिखाऊं, सो दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन पार्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन वी हैव गिवन. बैलेंस, रिदम, यूनिटी, वैरायटी, हार्मनी, कॉन्ट्रास्ट, जक्सटापोजिशन, एम्फेसिस, मूवमेंट, नेगेटिव स्पेस, स्केल, बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है. तो इफ यू हैव रेड इट कंप्लीटली यू विल नो दैट व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन आर देयर. और आंसर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन नहीं है वहां पे. ठीक है, रिदम इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, यूनिटी है, एम्फेसिस है. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ना, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आवर बुक, बट इसके लिए आपने क्लास अटेंड करी होनी चाहिए. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग बिफोर दैट क्वेश्चंस कम डायरेक्टली फ्रॉम आवर बुक्स और आवर क्लासेस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल अगर सैचुरेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दिस इज मेंशन्ड इन आवर बुक. यहाँ पे ये मेंशन्ड है दैट सैचुरेशन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल गो ओवर हियर टुवर्ड्स कलर स्कीम्स एंड टर्म्स, सो हियर यू कैन सी ओवर हियर सैचुरेशन इज मेंशन्ड, ओके, बट इन द क्लास द टीचर्स विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज ह्यू, व्हाट इज सैचुरेशन, व्हाट इज ब्राइटनेस. दीज थिंग्स आर सो न्यू एंड समटाइम्स बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि शायद आपको समझ में नहीं आए कि यू नो व्हाट might be the correct answer for this. Saturation हमने सिर्फ अगर पढ़ लिया, रट लिया, उससे ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चंस को सही करके आओगे एग्जाम में. So you should have complete understanding also which you will get in the live classes. Teachers will explain you about this, right? तो यहाँ पे obviously the brilliance is the correct answer. ठीक है, darkness नहीं, अगर क्योंकि हम आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, रट के नहीं, एक्चुअली में अंडरस्टैंड करके पता होगा कि सैचुरेशन एक्चुअली में होता क्या है. तो ऐसे करके आपको बुक्स के थ्रू क्लास में
अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्वेश्चंस आप अगर समझ पाओगे, सारी चीज़ें सिलेबस कंप्लीट करोगे तो क्वेश्चंस उसमें से ही आएगा. ऑल क्वेश्चंस आर देयर डायरेक्टली इन आवर बुक ऑल्सो. ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे कि या तो बुक्स में होंगे डायरेक्ट या क्लास में पढ़ाए गए होंगे, तो अंडरस्टैंडिंग से आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं टुवर्ड्स आवर सेकंड बुक विच इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स. ये इंटायर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इन द 2024 अटेम्प्ट. ओके, सो दिस इंटायर टॉपिक इज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड द मटीरियल्स यूज्ड इन अ बिल्डिंग. ऑब्वियसली अगर आप आर्किटेक्चर करने वाले हो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, उसमें क्या मटीरियल्स यूज होते हैं, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ऑब्वियसली सब कुछ तो नहीं दिखा सकती हूँ पूरा बुक, बट एटलीस्ट आई विल शो यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड अ फ्यू पेजेस इन द बुक. ओके, तो जैसे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग के बारे में, फाउंडेशन, ब्रिक मेसनरी, स्टोन्स, रूफ, डोर्स, विंडो, वाटर प्रूफिंग, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना आपके, यू स्टडी इट ओवर द 5 years ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स. बट अगर आप समझ रहे हो कि आप कोई आर्किटेक्चर की BCM की बुक उठा के पढ़ोगे, वो होने नहीं वाला है, बिकॉज उसमें इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि वो रिक्वायर्ड नहीं है नाटा या JEE एग्जामिनेशन के लिए. बट इन आवर बुक्स वी हैव ओनली गिवन यू द बेसिक ओवरव्यू एंड द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड एक्चुअली फॉर नाटा एंड JEE एग्जामिनेशन. आपके टॉपिक्स बिल्कुल 100% डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो आप ऑब्वियसली आर्किटेक्चर कोर्स में पढ़ने वाले हो. बट इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो बेसिक ओवरव्यू है, वो नाटा JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो हमें पता है कि क्या चीज़ आ सकती है, क्या चीज़ डेफिनेटली नहीं आ सकती है, एंड वी हैव गिवन एंड मेड द बुक अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इसमें देखो कंक्रीट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है फ्रॉम आवर बुक. दिस इज कंप्लीटली डायरेक्टली देयर इन आवर बुक्स. ओके, एक्चुअली इसमें जितने क्वेश्चन है इस बार जो आए थे, सब कुछ ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है. मतलब डायरेक्ट मतलब लेजिट डायरेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग के पेजेस का है. सो हाउ द लोड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर. ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर होता है जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो बिल्डिंग का पार्ट है, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर. सब स्ट्रक्चर होता है जो ग्राउंड लेवल के अंदर बिल्डिंग का पार्ट होता है, दैट इज सब स्ट्रक्चर. ओके, तो लोड ट्रांसफरिंग कैसे होता है वो इसमें पूछा गया है, और यहाँ पे इन्होंने ये भी बनाया हुआ है. सो दिस इज दे हैव मेड अ फ्रेम स्ट्रक्चर ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कंस्ट्रक्शन की बुक. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बुक खोल लेते हैं. ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं. यहाँ पे आप देखो सेकेंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, पेज नंबर 9 यहाँ पे चलते हैं हम. टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, पेज नंबर 9. सो हियर बिकॉज दे हैव मेड अ फ्रेम स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर वाला पार्ट को देखो. यहाँ पे लोड ट्रांसफरिंग बिल्कुल हमने दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, स्लैब टू बीम, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन. ऑब्वियसली मे बी आप अगर देखो, आप अगर बुक को डायरेक्टली पढ़ने वाले हो, आपको हो सकता है ये याद भी ना रहे, बिकॉज इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा. क्लासेस में आपकी अंडरस्टैंडिंग ही कुछ ऐसी हो जाती है कि आपके लिए ऑब्वियस हो जाता है. समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? इट बिकम्स सो ऑब्वियस कि हाँ ये तो है, तो इतना ईजी हो गया. तो दैट इज़ वाई सिर्फ आर्किटेक्चर में बुक्स रीड करना इनफ नहीं होता है. ये कोर्स में भी है और ये एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए भी है. अंडरस्टैंडिंग गुड मेंटोरशिप, गुड फैकल्टी मेंबर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम्स. ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है आंसर 3. और आप देख सकते हो बी है, तो बी में है स्लैब. ठीक है, फिर उसके बाद ए आया स्लैब टू बीम, उसके बाद ई आया. ठीक है, बीम टू कॉलम, कॉलम टू फाउंडेशन, फाउंडेशन टू अर्थ. ये सेम चीज़ें मैं क्लास में कितनी बार पढ़ा, एकदम शुरू का पार्ट है एग्जैक्टली सा. ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस आ जाएंगे कंस्ट्रक्शन में. और उसके बाद हम चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट. अच्छा, ये भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हुए सब, ये सब. अच्छा देखो, अब ये चीज़ है, दिस इज अबाउट द इन आर्किटेक्चर व्हेन यू मेक द प्लान्स, तो हम बहुत सारे ऐसे एनोटेशंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल ये पार्ट, जैसे आप कोई वॉल बना रहे हो तो ये ब्रिक्स के लिए यूज़ करते हो. दिस इज़ फॉर वुड गाइज. तो ये जो इस तरीके की आपको ये एनोटेशन दिख रही है, ये एक्चुअली वुड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है. तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी ऑब्वियस, ये 4th इज द करेक्ट आंसर. बट बुक में आप डायरेक्टली शायद इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, या बुक में हम डायरेक्टली इसको डाल नहीं सकते क्योंकि इतनी बेसिक सी चीज़ है. तो इसको हम जैसे ना लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं ये चीज़ें, और ये इतनी ऑब्वियस होती हैं और इतनी ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाती हैं कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. बाकी ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट है, ये वाला भी डायरेक्ट क्वेश्चन है शेल स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में है. मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि हाउ वी हैव गिवन. सो ओवर हियर ऑल्सो एज यू कैन सी वी हैव गिवन दिस शेल स्ट्रक्चर ओवर हियर. ओके,
सो शेल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में आपको क्लास में बताएंगे, कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगे, तो इजीली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ दीज। अच्छा, अब देखो कि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कितना डिफरेंट है, क्योंकि शेल स्ट्रक्चर आपको पता है और ये सारे स्ट्रक्चर्स भी आपको पता होंगे बिकॉज ये आपने फेमस बिल्डिंग्स वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इजीली फिर आपको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो इतना डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना चीजों को जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि बुक में से बिल्कुल ऐसा एनसीईआरटी के वैसा सा आ जाएगा कि ठीक है ऐसे लिखा हुआ है बुक में तो वही लाइन पे लाइन आ गई, देखो ऐसा नहीं होने वाला है। ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है और जेई वाले हमारी बुक से तो पेपर नहीं बना रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ है कि कंटेंट सारा उसमें से ही होगा, बट या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। उसके लिए लाइव क्लासेस, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट एक्चुअली मैं प्रिपरेशन का तरीका ही यही है, दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड बुक विच इज गोइंग टू बी आवर फेमस बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्ट्स। इसमें गाइज इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर शॉट है। और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, नाटा में बहुत ज़्यादा आते हैं, जेईबीआर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपको 4 मेजर मैंने इसको टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया, सेकेंड इज फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, थर्ड इज फेमस आर्किटेक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ इज फेमस आर्किटेक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो आप पहले जितने भी बिल्डिंग्स इंडिया में हैं फेमस वाले उनको लर्न करो, जितने बिल्डिंग्स वर्ल्ड में हैं उनको लर्न करो, जितने आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड में उनको लर्न करो, आर्किटेक्ट्स इंडिया में उनको लर्न करो। इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है और इससे ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं कर सकते हो। सो आई विल शो यू हाउ दिस इज इन आवर बुक्स ऑल्सो। मैं आपको बुक भी खोल के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप फेमस बिल्डिंग्स की बुक को देखोगे, हियर आई विल जस्ट गो, देखो इसमें 4 ही टॉपिक्स है, इसमें इंडिया के मैं सारे डाले हैं। तो ये देखो ताजमहल डाला हुआ है, कुतुब मीनार। अब आप बोलोगे कि दीज आर वेरी इजी, बट ठीक है बुक में तो डालना पड़ेगा ना, बिकॉज मे बी किसी को ना पता हो, आई डोंट नो, बिकॉज मे बी हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आपको पता हो। तो इसमें मैंने जितने भी बिल्कुल फेमस वाले बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, सब कुछ मैंने डाल दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर से आप आएगा ही नहीं, आप प्रिपेयर कर भी नहीं सकते अगर आ गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिफाई द बिल्डिंग मटेरियल प्राइमरीली यूज्ड फॉर क्लैडिंग इन लोटस टेम्पल। अब देखो, अब ये भी थोड़ा सा ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। अगर आप लोटस टेम्पल में हम देखते हैं कहाँ पर है, ये दिस इज लोटस टेम्पल। तो यहाँ पे आप देखो मटीरियल्स में इट इज ऑलरेडी गिवन, द टेम्पल इज प्राइमरीली मेड ऑफ वाइट मार्बल इम्पोर्टेड फ्रॉम ग्रीस। तो इस तरीके से आपको सारे बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ोगे तो डेफिनेटली थोड़े पागल हो सकते हो, क्योंकि यार बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी, बट क्लास में एक्सप्लेन ही आपको कुछ इस तरीके से किया जाएगा। एक्टिविटीज़ मिलती हैं बच्चों को, यू नो वी गिव देम अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुप एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी, आप डिस्कशन करोगे, आपको नॉर्मली फन वे में याद हो जाएगा। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, खुद से पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे सिडनी ओपेरा हाउस का आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आवर बुक डायरेक्टली, ऑल क्वेश्चन अगेन डायरेक्टली फ्रॉम आवर बुक्स, ओके। यहाँ पे भी देखो ये मैच द फॉलोइंग, तो इस तरीके से आपको दिया जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्ट के बारे में भी आ सकता है, जैसे अब इस वाले अटेम्प्ट में ज़्यादातर बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स का आया था, कभी कभी आर्किटेक्ट्स के ऊपर भी ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द 2D 3D विजुअलाइजेशन बुक। ये जो बुक है इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रैक्टिस करने के लिए है, दिया गया है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको क्लास में बताया जाएगा और उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। तो इस पूरी बुक में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, विच वी हैव मेड ऑन आवर ओन। डेफिनेटली सेम क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं और सेम क्वेश्चंस आने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया और आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमने खुद से क्वेश्चन बनाए हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, बट इतना प्रैक्टिस आपका हो जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। सो दीज आर द 2D 3D विजुअलाइजेशन क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ये आपको फिगर दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि यहाँ से इसका 2D व्यू कैसा दिखेगा, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सो आई विल ऑल्सो शो यू द बुक दैट हाउ यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। सो दिस इज आवर 2D 3D विजुअलाइजेशन बुक और यहाँ पे देखो इतने सारे आपके पास क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको सारे 2D 3D के टॉपिक्स हो जाएंगे, सर्फेस काउंटिंग, टॉप व्यू, ओपनिंग अप 3D figures, front view and cube counting. So all the practice questions will be given over here in this book. Now another topic is very important, another is reasoning book. This is also same, you have to understand the concept. इसमें कई बारी ट्रिक्स होते हैं और कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ सीक्रेट
ट्रिक्स होते हैं जिससे आपकी बहुत फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन और सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद आपको अगेन इसमें करना है प्रैक्टिस। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज दीज आर नॉट थियोरिटिकल बुक्स, ओके, अनलाइक द अदर बुक्स, अदर 4 बुक्स विच आर थियोरिटिकल। सो इन द रीजनिंग ऑल्सो, इफ आई विल शो यू दिस रीजनिंग बुक, यहाँ पे भी अगेन बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, एंड देर विल बी इंट्रोडक्शन ऑल्सो, एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑल्सो, वी विल there are some techniques also in the books which are explained, and then there will be a lot of questions with solutions. तो आप इसमें questions का मतलब खुद भी आप कर सकते हो, solution भी आप देखोगे तो आपको बहुत easily इसका solution और इसकी मतलब full एक overall practice आपकी हो जाएगी through this reasoning book. So इसमें self practice बहुत ज़्यादा important है and concept understanding इसमें important है, ठीक है। जो हमारी classes होती हैं उसमें तो आपको concept बताया जाएगा, प्लस आपके बहुत सारे tests होंगे इन topics पे, तो उससे फिर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, बिकॉज आप कुछ क्वेश्चन रॉन्ग करोगे, टीचर्स आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे रॉन्ग हो गए हो, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट रहता है। सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट हैव अ लुक, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, ठीक है। ये आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके बुक्स में प्रैक्टिस में इंक्लूडेड रहेगा, सेम क्वेश्चंस ना हो बट कॉन्सेप्ट यही रहता है, और फिर एग्जाम में बहुत ईजिली ये सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, अगेन इट्स अ थियोरेटिकल पार्ट। लास्ट ईयर इससे थोड़े क्वेश्चंस कम आए थे, बट देर आर ईयर्स जब इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इट डिपेंड्स, आपको पूरी बुक तो पढ़नी पड़ेगी, चाहे इसमें से 5-6 क्वेश्चंस ही क्यों ना आए, ठीक है। तो लास्ट ईयर थोड़े से कम आए थे हिस्ट्री से क्वेश्चंस, बट अगेन इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हो सकता है कि इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज फॉरेन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एंड अनदर इज इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इंडिया के तो मैंने सारे, जैसे इंडिया में सबसे पहले इंडस वैली आया, फिर बुद्धिस्ट आया, फिर जैन आया, अर्ली चालुक्यन, नगाड़ा, द्रविडियन, इस्लामिक, कॉलोनियल, फिर अभी का प्रेजेंट आर्किटेक्चर चल रहा है। तो दिस इज इंडियन टाइमलाइन, बट ऑब्वियसली इन अदर कंट्रीज उनका भी पूरा, पाकिस्तान का अपना टाइमलाइन होगा, चाइना का अपना टाइमलाइन होगा, तो ऐसा हम हर कंट्री का तो टाइमलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं, और इंडिया से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं। क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर देयर। तो जैसे एलिफेंटा केव्स के ऊपर आ गया, एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच गॉड। इतना देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अंदर डेप्थ से आ रहा है, ठीक है। आपको समझना है कि आपको डेप्थ में प्रिपरेशन करनी है, ऊपर ऊपर से सिर्फ टॉपिक समझने से प्रिपरेशन नहीं होगी। जितने क्वेश्चन से डेप्थ में आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो, अ जायजेंटिक चैरियट, इलैबोरेटली कार्व्ड स्टोन व्हील, पिलर्स एंड वॉल्स, ये मतलब आपको एक जो इसका आंसर है वो सन टेम्पल है। ऑब्वियसली अगर आपने सन टेम्पल देखा है कभी, या आपको पता होगा कि उसमें व्हील्स हैं और उस तरीके का है, तो आपको इसको यू हैव टू मेमोराइज इट ऑल्सो, यू हैव टू काइंड ऑफ मेमोराइज इट, यू हैव टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द टेम्पल, राइट। तो आपको इतना कैरेक्टरिस्टिक्स उसका पता होना चाहिए। सो गाइज नाउ लेट्स सी द सन टेम्पल वाला क्वेश्चन वंस, कि कैसे है हमारी हिस्ट्री की बुक्स में। सो दिस इज आवर हिस्ट्री बुक, एज यू कैन सी द टॉपिक इज नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर, एंड यहाँ पे हमने दिया हुआ है सन टेम्पल कोणार्क के बारे में, एंड दिस इज द लाइक फोटोज आपको मिल जाएंगी। आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है, इसके प्लान को याद रखना है, इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है, तो इट विल बिकम वेरी इजी। सो आवर बुक्स आर ऑल्सो वेरी इलस्ट्रेटिव, हमने बहुत सारे फोटोज डाले हुए हैं ताकि आपका जो आइडेंटिफिकेशन और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी इजीली आपके सॉल्व हो पाए। तो हिस्ट्री में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ता है। आई नो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम देते हो और क्वेश्चन आपके सिर्फ 5, 6, 7 ही आते हैं, बट दिस इज हाउ यू बिकम अ टॉपर। सो फॉर एवरी बुक यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट, और उससे जो थोड़े बहुत भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर बुक से आएंगे ना, देखो तभी आप टॉपर बनोगे। तो आपको हर टॉपिक पे, हर बुक पे आपको इक्वली फोकस करना है। एनी लाइक बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं विच टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट। गाइस ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप देख सकते हो हर टॉपिक से, हर बुक से, टॉपिक तो कुछ भी हो सकता है बुक में, बट हर बुक इंपॉर्टेंट है, और हर बुक से कहीं ना कहीं आपके 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो एवरी टॉपिक, एवरी बुक इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। यू कांट प्रिडिक्ट दैट किस बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, किस बुक से कम क्वेश्चन आ जाए, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, कंप्लीट नहीं करोगे तो टॉपर बनने के चांसेस आपके फिर कम होते जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट द एप्टीट्यूड पार्ट गाइज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ड्राइंग पार्ट। ड्राइंग पार्ट में आपको बहुत ब्रीफ में दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ड्राइंग की एक और भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, इवन एप्टीट्यूड की बनाऊंगी बाद में और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो ड्राइंग में भी आपके 6 टॉपिक्स हैं,
ठीक है। और ड्राइंग का जो मेरा बुक है, तो मेरा एक ही बुक है ड्राइंग का, ये 6 टॉपिक्स मैंने एक ही बुक में दिए हुए हैं। तो आई विल शो यू द बुक ऑफ ड्राइंग ऑल्सो, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक ऑफ द ड्राइंग पार्ट। मैं आपको एंड में दिखाती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग एक बार ड्राइंग के सिलेबस को समझ लेते हैं। फर्स्ट इज गाइस पोर्ट्रेट। नाउ इन द पोर्ट्रेट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट तो आपका इमेजिनेशन से ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, दैट मे बी द क्वेश्चन कैन बी दैट ड्रॉ योर सेल्फ पोर्ट्रेट और ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ योर फेवरेट टीचर, मे बी एनीथिंग लाइक दैट। एंड सेकेंड आपका आ सकता है, यू नो, देयर कैन बी एनी इमेज गिवन टू यू। सपोज आपको ये फर्स्ट वाली इमेज दे दी गई, या आपको ये फोर्थ वाली इमेज दे दी गई, कोई भी आपको इमेज दी जा सकती है, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ प्रोपोर्शनेट स्केच आउट ऑफ दैट इमेज। तो आपको ये ही मेक श्योर करना है कि आप पोर्ट्रेट्स वाले पार्ट को ऐसे सीख रहे हो कि आप इमेजिनेशन से भी ड्रॉ कर पाओ और आपको रेफरेंस इमेज से दिया जाए प्रोपोर्शनेट स्केच बनाने के लिए, सो यू आर एबल टू डू दैट ऑल्सो। सो दैट्स हाउ यू हैव टू लर्न द पोर्ट्रेट पार्ट। सेकेंड इज द ह्यूमन फिगर्स। ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों 2024 में अटेम्प्ट में आए हैं, अभी इसी साल ही, ठीक है। तो ये आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में ये आया था, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो यू हैड टू मेक ह्यूमन फिगर, जैसे ये आप देख सकते हो ह्यूमन फिगर्स हैं, और इसको देख के प्रोपोर्शनेट स्केच बनाना था, ठीक है। तो ये भी देखो डायरेक्ट भी आप बना सकते हो, बट अगर आपको प्रपोर्शंस का आइडिया है, बिकॉज इफ यू नो दैट ह्यूमन फिगर्स आर डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, आप देख सकते हो। तो ये अपर बॉडी आ गया, उसके बाद अगेन 8 पार्ट्स में लोअर बॉडी आ जाती है। तो आप देख सकते हो कितना प्रपोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, अंडरस्टैंडिंग की प्रपोर्शंस कैसे लिए जाते हैं और रेंडरिंग कैसे की जाती है। रेंडरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, अगर आप एक माइक्रॉन पेन यूज कर रहे हो फॉर दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू आर गोइंग टू गेट ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मार्क, बिकॉज यहाँ पे भी माइक्रॉन पेन्स यूज किए गए हैं इन स्केचेस में भी। तो यू नो रेंडरिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रपोर्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन फिगर्स, दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव स्केचिंग। इसमें आपके 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो आपके इंडोर स्केचेस आ सकते हैं और एक आपके आउटडोर स्केचेस आ सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग कैन कम फ्रॉम इंडोर, बेडरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, एनीथिंग, एनी इंडोर स्पेस कैन बी आस्क्ड फॉर यू टू मेक through your memory। तो इमेजिनेशन बेस्ड ड्राइंग यू हैव टू लर्न। एनी आउटडोर, जैसे आपको इंडोर में ऐसा कुछ आ सकता है बनाने के लिए, जैसे आप ये वाला स्केच देख रहे हो यहाँ पे। आउटडोर में आपको कोई घर का डिजाइन करना सकता है। ये स्ट्रीट व्यू का क्वेश्चन है, सेकेंड वाला जो है ये सोल्यूशन है ऑफ द क्वेश्चन दैट केम इन द सेकेंड अटेम्प्ट 2024 में आया था, अभी इसी साल का ये सोल्यूशन है स्ट्रीट व्यू का। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी आ सकता है बेसिकली, ठीक है। इसमें भी आपको रेंडरिंग पता होना चाहिए, पर्सपेक्टिव स्केचिंग, इमेजिनेशन बेस्ड ड्राइंग, बेसिकली दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न। एंड देन देयर इज अनदर टॉपिक which is 3D composition. It is also coming under perspective only, because आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 2 point perspective का यूज़ किया गया है। तो आपको कैसे perspective का यूज़ करके बनाना है, बेसिक पहले तो क्यूबॉइड्स बनाना सीखो, बेसिक फॉर्म्स बनाना सीखो, एंड देन उन्हीं बेसिक्स फॉर्म को यूज़ करके आप पूरा कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। लाइक ये जो है ये 2 पॉइंट में बना हुआ है, ये 1 पॉइंट में बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो पर्सपेक्टिव स्केचिंग ओनली। यहाँ पे पर्सपेक्टिव स्केचिंग आपको यूज़ करनी है। ये इस टाइप के कॉम्पोजिशंस में आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग यूज़ करनी पड़ेगी। एंड देन रेंडरिंग, शैडो मेकिंग, दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। कि देखो आप रियल इमेजेस को क्लिक करो, ठीक है, थोड़ा उसको स्टडी करो, शैडोज को स्टडी करो, यू नो डेप्थ स्टडी करो कि कौन सी चीज़ें डार्क दिख रही, कौन सी चीज़ें लाइट दिख रही हैं। तो वो चीज़ें आपको बहुत तरीके से स्टडी की जा सकती है। पर्सपेक्टिव, शैडो फॉर्मेशन, रियल लाइफ, स्टिल लाइफ स्केचिंग, यू कैन से रियल लाइफ में फोटोज क्लिक करना। तो उसके बहुत तरीके होते हैं 3D कॉम्पोजिशन को मास्टर करने के, दैट वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लासेस। ओके, नाउ कमिंग टू द लोगो डिजाइनिंग, दिस इज सम ऑफ आवर स्टूडेंट वर्क्स। तो लोगो एक बहुत ही इंटेंजिबल टॉपिक है, इसमें कोई गलत सही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। यू कैन जस्ट मेक गुड लोगोज और बैड लोगोज, दैट्स द ओनली थिंग। तो यहाँ पे कैसे गुड लोगोज बनाने हैं, यू नो हाउ यू हैव टू रेंडर इट। रेंडरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस ओवर हियर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चों ने कैसे एक कलर्स जो यूज हुए हैं कितने ब्राइट लग रहे हैं, कितना ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंटेड है लोगोज, राइट। तो उतना आपको एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है वो हम क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। लास्ट टॉपिक ओवर हियर इज 2D कॉम्पोजिशन। एंड 2D कॉम्पोजिशन अगेन जो एप्टीट्यूड में आपने देखा ना, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन और वो सब ड्राइंग थ्योरी के जो टॉपिक्स थे, उन्हीं का एप्लीकेशन है, उन टॉपिक्स का ही एप्लीकेशन है 2D कॉम्पोजिशन, ठीक है। इसमें कलर्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज हुआ है, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। किस तरीके से बैलेंस आपको दिख सकता है, रिदम दिख सकता है कॉम्पोजिशंस में। तो दीज थिंग्स आर समथिंग दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास। इज नॉट वेरी easy to make you understand right now in the video,
बट येस थोड़ा डिफिकल्ट क्लास में भी होता है पढ़ना, और बहुत एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। देखने में लगता है कि ठीक है बहुत बेसिक शेप्स ही तो यूज़ हो रहे हैं और क्या ही डिफिकल्ट होगा इसमें, बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। ये भी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है 2D कॉम्पोजिशन का। तो ये आपके ड्राइंग के टॉपिक्स है गाइज। नाउ एज पर माई प्रॉमिस लेट मी शो यू द ड्राइंग बुक ऑल्सो, क्योंकि वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अलग अच्छी बुक है। आई बिलीव सारे ही बुक्स में, सारी बुक्स अच्छी हैं वैसे तो, बट ड्राइंग की बुक बहुत बहुत ही अलग है। मैं आपको भी दिखाऊंगी। इट्स कम्प्लीटली मेड बाय मी 100%, ऑल द थिंग्स एंड एवरीथिंग। तो मैं दिखाऊंगी मैंने कैसे डाला है। बट मैथ्स का सिलेबस एक बार देख लेते हैं, फिर मैं ड्राइंग की बुक आपको लास्टली दिखा दूंगी। मैथ्स के सिलेबस में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता ही है। इनसे क्वेश्चंस आपके सेम जो जेई पेपर 1 जो IIT वाला पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, वही वैसे ही पेपर 2 में भी आते हैं, और ये आपके टॉपिक्स हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक कि मुझे आपको सिलेबस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ये टॉपिक्स में क्या पढ़ना होता है और कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आई डोंट थिंक, बट थोड़े हाई लेवल के होते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू नो। ठीक है, तो ये होता है आपका वीडियो अबाउट द इंटायर सिलेबस एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ड्राइंग के बुक एक बार देख लो फाइनली मैंने कैसे दिखाया हुआ है। सपोज आपको पोर्ट्रेट सीखना है तो पोर्ट्रेट मैंने ऐसे दिखाया हुआ है, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द स्कल फर्स्ट, देन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि स्कल के क्या डायरेक्शंस होते हैं। मैं आपको पूरा समझा नहीं सकती हूँ अभी, बट थोड़ा आप देख लो कि जैसे अगर मान लो कि ये है आपका स्कल, तो देखो आप स्कल को अलग अलग एंगल से देखोगे ना, तो यू कैन जस्ट डू दिस एक्टिविटी। एक संतरा या कुछ ले लो और उसको साइड से कट कर दो। दिस इज हाउ आवर स्कल इज। हमारा जो दोनों साइड है स्कल का वो फ्लैटेंड अप होता है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ना, ये देखो फ्लैटेंड स्कल का कॉन्सेप्ट यूज करके इमेजिनेशन से आप कैसे स्केचिंग कर सकते हो, कैसे पूरा का पूरा यू नो यू कैन मेक दीज फेस स्ट्रक्चर्स, वो मैंने पूरे इसमें बुक में बताया हुआ है। ठीक है, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस एरियाज भी मैंने आपको दिए हुए हैं करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक। इसमें जैसे अगर आपको आईज बनाना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इजी वे में अलग अलग डायरेक्शन में आईज को बना सकते हो, प्रैक्टिस एरियाज भी आपको मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर ड्राइंग बुक गाइज। में काफ़ी आपको रेफरेंस इमेजेस भी मिल जाएंगे। मैंने एक लाइट वर्जन, जैसे एक लाइट लेआउट दिया है, इस पे आप इसमें शेडिंग कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, वो सब एरियाज भी मैंने दिए हुए हैं। तो इस बुक से आपको काफ़ी अलग ही टाइप की हेल्प मिलने वाली है एग्ज़ाम के लिए। सबसे मतलब बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है SSC स्टडी मटेरियल का, वो डेफिनेटली ड्राइंग बुक है। आप एक बार देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात करी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती हूँ अभी। सो दिस इज़ आवर ड्राइंग बुक गाइज, एंड दिस वॉज अबाउट टूडेज वीडियो ऑन द इंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ JEE BARC सिलेबस। आई होप यू लाइक द वीडियो। आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंटली गाइज, आगे जो अभी वीडियो मैं एंड कर रही हूँ, बट एक मैं क्लिप डालूंगी छोटा सा अबाउट SSAC का। आई वुड रिकमेंड यू दैट प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, क्योंकि अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो वीडियो क्लिप, उसमें SSAC हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, इट्स अबाउट दैट। सो वी हैव 3 डिफरेंट प्लान्स, और हम कैसे वो क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं अपनी क्लासेस में, उसके बारे में वो छोटा सा क्लिप है। तो आई विल सजेस्ट यू दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू मस्ट वॉच द वीडियो एटलीस्ट। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए तो आप डायरेक्ट मत ज्वाइन करो, बट हमारी डेमो क्लासेस के लिए जरूर एनरोल करना। डेमो क्लासेस में एनरोल करने के लिए ईदर यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी ऑन द नंबर विच इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारी वेबसाइट की लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो बुक अ फ्री डेमो क्लास का बटन आएगा। वहां से आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली डेमो क्लासेस को बुक कर सकते हो। फिर आपको डिटेल में समझ आएगा कि एक्चुअली में हम कैसे पढ़ाते हैं। सो दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो गाइज। सी यू इन द डेमो क्लासेस। तब तक के लिए बाय बाय। अबाउट SSC का क्लिप जरूर देखो एंड एंजॉय करो। थैंक यू सो मच गाइज। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE BARC examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects.
This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE-BARC exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.